اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ سورج سر پر آ گیا تھا۔ اگست کی گرمی اور حبس کا عروج شروع ہو چکا تھا۔ مہان نے اتنی ہی نفری حملے کے لیے آگے بڑھائی جتنی مسلمانوں کی تھی۔ یہ اس کے اپنے لشکر کی نفری کا چوتھا حصہ تھا، یعنی تقریباً 40,000۔ یہ تمام نفری پیادوں کی تھی۔ جب یہ نفری رومیوں کی دفوں کی تال پر آگے بڑھی تو لگتا تھا جیسے طوفانی سمندر کی موجیں پہلو بپہلو بپھری ہوئی غراتی ہوئی اپنے ساتھ ہی سب کچھ بہا لے جانے کو آ رہی ہیں۔ کسی مجاہد کی گرجدار آواز بلند ہوئی، اسلام کے پاسبانوں، آج کا دن تمہارے امتحان کا دن ہے۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کی صفوں سے تکبیر کے نعرے گرجے۔ اگلی صف میں جو لمبی برچھوں والے تھے اور جو تیر انداز تھے وہ تیار ہو گئے۔ ایک ایک تیر کمانوں میں چلا گیا، برچھیاں تن گئی۔ ہر مجاہد کی زبان پر اللہ کا نام تھا۔ بعض کسی نہ کسی آیت کا ورد کر رہے تھے۔ رومی پیادوں کا سیلاب قریب آ گیا تھا۔ اسلام کے نیزہ بازوں نے بڑھ بڑھ کر برچھیوں کے وار شروع کر دیے۔ آگے والے رومی گرتے تھے تو پیچھے والے انہیں رونتے ہوئے آگے بڑھتے۔ نیزہ بازوں کا کام کچھ تو تیر اندازوں نے آسان کر دیا تھا۔ رومی ابھی برچھیوں کی زد سے دور ہی تھے کہ ان پر تیر اندازوں نے تیروں کا مہ برسا دیا۔ رومیوں نے تیروں کو ڈھالوں پر لینے کی کوشش کی تھی، پھر بھی کئی رومی تیروں کا شکار ہو گئے۔ اس سے رومیوں کی پیش قدمی کی رفتار سست ہو گئی۔ آگے آئے تو مسلمانوں کی برچھیوں نے انہیں چھلنی کرنا شروع کر دیا، لیکن ان رومیوں کا حملہ مسلمانوں کے سارے محاذ پر نہیں بلکہ 11 میل لمبے محاذ کے تھوڑے حصے پر تھا۔ اتنے تھوڑے حصے پر اتنی زیادہ نفری کا حملہ روکنا آسان نہیں تھا۔ رومی پیادے بڑے آ رہے تھے، حالانکہ ان کا نقصان خاصا زیادہ ہو رہا تھا۔ مسلمان تیر اندازوں اور نیزہ بازوں نے جب دیکھا کہ رومی سر پر آ گئے ہیں تو انہوں نے تلواریں نکال لی اور مارکے کی خونریزی میں اضافہ ہو گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دماغ حاضر اور حوصلے قائم رکھے۔ صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ محاذ کے جس حصے پر اتنا زوردار حملہ ہوا تھا اسے کمک سے مزید مضبوط کیا جاتا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ اس سے بھی زیادہ خطرے مول لینے والے سالار تھے۔ انہوں نے محاذ کے کسی اور حصے کو کمزور کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مجاہدین کو معلوم تھا کہ وہ کتنے کچھ ہیں اور ان کے پاس کیا ہے۔ انہی حالات میں لڑنا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جنگ فیصلہ کن ہوگی، چنانچہ انہوں نے کمک اور مدد کی امید دل سے نکال پھینکی تھی۔ مدد کے لیے وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ رومی سالار احتیاط سے کام لے رہے ہیں۔ رومی سالار اعلیٰ مہان دیکھ رہا تھا کہ اس کے حملہ آور پیادے کٹ رہے ہیں اور وہ مقصد پورا کرتا نظر نہیں آ رہا تھا جس مقصد کے لیے اس نے حملہ کروایا تھا۔ پھر بھی اس نے اپنے حملہ آور پیادوں کو پیادہ یا سوار دستے کی کمک نہ دی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مہان کو یہ توقع تھی کہ مسلمان اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے پورے محاذ کو درہم برہم کر دیں گے، لیکن اس کی یہ توقع پوری نہیں ہو رہی تھی۔ کمک نہ ملنے کا اور اپنے اتنے زیادہ نقصان کا اثر رومی حملہ آور پیادوں پر بہت برا ہوا۔ قریب تھا کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتے کہ ان کے سالار نے انہیں پیچھے ہٹا لیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ منظر جذباتی سا تھا۔ جب مجاہدین جو اپنی جگہ سے آگے چلے گئے تھے واپس آئے، ان کی عورتیں ان کی طرف دوڑ پڑیں۔ وہ اپنے خاوندوں کو پکار رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے مردوں کو گلے لگایا اور جو زخمی تھے ان کی باقاعدہ مرہم پٹی کرنے سے پہلے اپنی اوڑھنیاں پھاڑ پھاڑ کر ان کے زخم صاف کیے اور ان پر اوڑھنیوں کی پٹیاں باندھ دیں۔ عورتیں پانی کے مشکیزے اٹھائے میدان جنگ میں پھیل گئیں۔ وہ ان زخمیوں کو ڈھونڈتی پھرتی تھیں جو اپنے سہارے اٹھ کر چلنے کے قابل نہیں تھے۔ عورتوں کے انداز میں والہانہ پن اور دیوانگی سی تھی۔ وہ شدید زخمی ہو جانے والوں کو پانی پلاتی، ان کے زخموں پر کپڑے پھاڑ کر پٹیاں باندھتی اور انہیں اٹھا کر اپنے سہارے پیچھے لا رہی تھی۔ شام گہری ہو گئی تو میدان جنگ میں مشعلیں نظر آنے لگیں۔ عورتوں کے ساتھ مجاہدین بھی اپنے شدید زخمی اور شہید ساتھیوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کے حوصلے بلند تھے۔ انہوں نے بڑا ہی شدید حملہ بیکار کر دیا تھا۔ میدان جنگ میں رومیوں کی لاشیں دیکھ کر ان کے حوصلے اور جذبے کو تقویت ملی۔ مسلمانوں کے مقابلے میں رومیوں کا نقصان بہت زیادہ تھا۔ وہ ایسی ترتیب اور ایسے انداز سے چلے آ رہے تھے جیسے حملہ کرنے آ رہے ہوں۔ مسلمان جو اپنے زخمی ساتھیوں کو اٹھا رہے تھے تلواریں نکال کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ اچھا خاصا مارکا ہوا۔ رومیوں کی طرف سے آواز بلند ہوئی، ہم اپنے زخمیوں کو اٹھانے آئے ہیں۔ مجاہدین کی طرف سے جواب گرجا، تم زخمی ہو کر ہی اپنے زخمیوں کو اٹھا سکو گے۔ 2-3 جگہوں پر اسی طرح کی جھڑپیں ہوئیں اور رات گزرتی رہی۔ اس وقت رومی سالار اعلیٰ مہان نے سالاروں کو اپنے سامنے بٹھا رکھا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھو، ہم اپنے حملے میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک سالار نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمارے سپاہیوں نے اپنے اوپر مسلمانوں کا خوف طاری کر رکھا ہے۔ مہان نے کہا، نہیں،
हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं, मुसलमान एक हैं। वो भी मुख्तलिफ कबीलों के हैं, लेकिन वो सब अपने आप को मुसलमान समझते हैं। उन्होंने अपने आप को इस्लाम के रिश्ते का पाबंद कर लिया है। इस अकीदे ने उन्हें एक जान कर दिया है। हम में ये इत्तेहाद नहीं। कई एक इलाकों और कई एक कबीलों के लोग हमारे साथ आ मिले हैं, लेकिन हमारे दरमियान कोई ऐसा रिश्ता नहीं जो हम सबको मुत्तहिद कर सके। एक पुराने सालार ने कहा, एक रात में इत्तेहाद पैदा नहीं किया जा सकता सालार आला। हमारे दरमियान इत्तेहाद न होने का ये मतलब तो नहीं कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हमें इन्हीं हालात में लड़ना है। महान ने कहा, हाँ, हमें इन्हीं हालात में लड़ना है। मैं मायूस नहीं। हमें कोई तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। कल सुबह हम उस वक्त मुसलमानों पर हमला करेंगे जब वो हमला रोकने के लिए तैयार नहीं होंगे, और ये उनकी इबादत का वक्त होगा। तकरीबन उन तमाम मौरखों ने जिन्होंने जंग यरमूक को तफसील से बयान किया है, महान का अगली सुबह के हमले का प्लान इस तरह लिखा है कि मुसलमानों के कल्ब पर हमला किया जाएगा जो धोखा होगा। इसका मकसद ये होगा कि कल्ब यानी मुसलमानों के दरमियानी दस्तों को, जिनमें मरकजी कमान भी थी, लड़ाई में उलझा कर यहीं रोक कर रखा जाए। इससे ये फायदा उठाया जाएगा कि मुसलमानों का मरकज अपने दाएं बाएं की तरफ तवज्जो न दे सके। महान के प्लान के मुताबिक असल हमला मुसलमानों के पहलुओं पर करना था, जिसका मकसद ये था कि पहलुओं के दस्तों को बखेर कर खत्म किया जाए, और अगर मुसलमान मुकाबले में जम जाएं तो उन पर ऐसा दबाव डाला जाए कि वो अपने कल्ब की तरफ इकट्ठे हो जाएं। इस सूरत में उन पर पहलुओं और अकब से हमला किया जाए। प्लान बड़ा खतरनाक था। रूमियों की नफरी इतनी ज्यादा थी कि उसके बलबूते पर अपने प्लान को कामयाब कर सकते थे। महान ने कहा, जाओ और अपने दस्तों को सुबह के हमले के लिए तैयार करो, लेकिन तैयारी ऐसी खामोशी से हो कि पता न चले। मुसलमानों के जासूस हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। रात को ही महान ने अपना खैमा उखड़वाया और एक चट्टान की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाकर नस्ब करवाया। वहां से तमाम तर महास को वो देख सकता था। उसने तेज रफ्तार घोड़ों वाले कासिद अपने साथ रख लिए और अपना हिफाजती दस्ता भी अपने साथ ले गया। दस्ते की नफरी 2000 थी। दोनों तरफ की फौजों के दरमियान 1.5 मील का फासला था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हस्बे मामूल दुश्मन की नक्लो हरकत पर नजर रखने और इत्तला देने के लिए अपने आदमी आगे भेज रखे थे, लेकिन दुश्मन के महास की सूरत ऐसी थी कि करीब जाकर कुछ देखना मुमकिन न था। अपने आदमी बुलंदियों से देखते रहते थे। मुसलमान फजर की नमाज पढ़ रहे थे। आगे गया हुआ एक आदमी दौड़ता आया और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि रूमी तैयार होकर तरतीब में आ रहे हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, कैसी तरतीब है? जासूस ने कहा, तरतीब हमले की मालूम होती है। पहले दफ बजे थे, फिर उनके दस्ते बड़ी तेजी से तरतीब में आ गए। सवार घोड़ों पर सवार हो चुके हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हो नहीं सकता कि रूमी कहीं और जा रहे हों, वो हमले के लिए आ रहे हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ परेशान भी हुए, लेकिन वो हौसला हारने वाले नहीं थे। तैयारी का वक्त नहीं था। अगर रूमी तैयार थे तो उन्होंने मुसलमानों को इस हालत में आ दबोचना था जब वो तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बड़ी तेजी से तमाम सालारों को इत्तला भिजवा दी कि दुश्मन का हमला आ रहा है। मुसलमान जब तैयार हो रहे थे उस वक्त रूमी लश्कर अपने महाज से चल पड़ा था। उसकी रफ्तार खासी तेज थी। रूमी सालारों को तवक्को थी कि वो मुसलमानों को बेखबरी में डालेंगे, लेकिन वो जब करीब आए तो मुसलमान तैयार थे। वो खिलाफे तवक्को इतनी जल्दी तैयार हो गए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें लंबा चौड़ा हुक्म न भेजा था, न कोई हिदायत जारी की थी। सिर्फ इतना पैगाम दिया था कि दुश्मन का हमला आ रहा है, अपने अपने महाज पर तैयार रहो। सुबह का उजाला सफेद हो रहा था। रूमी सैलाब की तरह बड़े आ रहे थे। उनका रुख मुसलमानों के कल्ब की तरफ था। उनके बहुत से दस्ते दाएं और बाएं पहलू की तरफ भी आ रहे थे, लेकिन मालूम यही होता था कि वो हमला कल्ब पर करेंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कल्ब के दस्तों को आगे बढ़कर दुश्मन का इस्तेकबाल करने का हुक्म दिया। उन्होंने दिफा का तरीका वही इख्तियार किया कि बर्छीबाजों और तीरंदाजों को आगे रखा गया। रूमी जो इस उम्मीद पर बहुत तेजी से आ रहे थे कि मुसलमान बेखबर होंगे और ये बड़ी आसान फतह होगी, मुसलमानों को हर लिहाज से तैयार देखकर जरा सुस्त हो गए और उनके कदम रुकने लगे। उन्होंने गुज़श्ता रोज हमला करके देख लिया था। मुसलमान तीरंदाजों ने इतनी तेजी से तीर चलाने शुरू कर दिए कि फजा में एक जाल तन गया। रूमी रुककर पीछे हटे और तीरों की जद से दूर निकल गए। कुछ देर के बाद वो ढालें आगे करके बढ़ने लगे। तीरंदाजों ने एक बार फिर तीरों का मेह बरसा दिया, लेकिन अब के रूमी बढ़ते आए। तीर खा खा कर गिरते भी रहे और वो नेज़ाबाजों तक आ पहुंचे। रूमियों के पास मरवाने के लिए बहुत नफरी थी। नेज़ाबाजों ने रूमियों को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन रूमियों की जलगार इतनी शदीद थी कि रुक न सकी। तब कल्ब के दस्ते आगे बढ़े और मुजाहिदीन ने जान की बाजी लगा दी।
खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ये देखकर हैरान हुए कि रूमी पीछे हटने लगे हैं। मुजाहिदीन उनके पीछे गए, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें रोक दिया। कुछ देर के बाद रूमी फिर आगे बढ़े और मुजाहिदीन ने पहले की तरह हमला रोका। खासी खूनरेजी हुई और रूमी पीछे हट गए और उसके बाद यही सिलसिला चलता रहा। मुसलमान सालारों को मालूम नहीं था कि महान का प्लान ही यही है कि मुसलमानों के कल्ब और महफूजा को उलझाए रखो, ताकि अपने पहलुओं से बेखबर रहें और उन्हें कुमक न दे सके। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इस धोखे को समझ तो न सके, लेकिन उन्होंने हर हमला इस तरह रोका कि मरकजियत और जमीयत को दरहम बरहम न होने दिया। रूमियों ने पीछे हटकर मुसलमान सालारों को मौका दिया कि वो जवाबी हमला करें, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दस्तों को दिफा में ही रखा। इससे उनका मकसद ये था कि रूमियों की नफरी और नफरी की जिस्मानी ताकत जायल होती रहे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने पहलुओं की तरफ तवज्जो न दी। उन्होंने सालारों को बता रखा था कि कुमक की उम्मीद न रखें। सालारों को भी अपनी बेमायगी का एहसास था और ये एहसास इस्लामी लश्कर के हर एक फर्द को था कि सूरत हाल कितनी ही दिगरगूं हो जाए, मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलेगी। रूमियों के असल हमले तो मुसलमानों के पहलुओं पर हो रहे थे, जो महान के प्लान के ऐन मुताबिक थे। दाएं पहलू पर यूं हुआ कि रूमियों ने वहां बड़ा तेज हमला किया। उस पहलू की कमान अमर बिन अल-आस के पास थी। मुजाहिदीन ने ये हमला न सिर्फ रोक लिया बल्कि दुश्मन को पसपा कर दिया। दुश्मन ने ये हमला करने वाले दस्तों को पीछे करके दूसरा हमला ताजा दम दस्तों से किया। ये पहले हमले से ज्यादा शदीद था। मुसलमानों ने उसका भी मुकाबला किया, लेकिन उनके जिस्म शल हो गए। उन्होंने रूमियों को इससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया जितना रूमियों ने उन्हें पहुंचाया था, और उन्होंने उस हमले का दमखम तोड़ दिया। रूमी बुरी तरह नाकाम होकर पीछे हट गए, लेकिन मुसलमानों की जिस्मानी हालत ऐसी अबतर हो गई कि वो मजीद लड़ने के काबिल न रहे। रूमियों ने तीसरा हमला ताजा दम दस्तों से किया। अब के हमलावरों की नफरी भी ज्यादा थी। मुसलमानों ने जज्बे के जोर पर हमला रोकने की कोशिश की थी, मगर जिस्म ही साथ न दें तो जज्बा एक हद तक ही काम आ सकता है। वो हद खत्म हो चुकी थी। मुसलमानों के पांव उखड़ गए, उनकी तरतीब और तंजीम टूट गई। पेशतर इस तरह पसपा हुए कि खैमागाह तक जा पहुंचे, और जिन्होंने पसपाई को कबूल न किया वो दरमियानी वसतों यानी कल्ब की तरफ जाने लगे। सालार अमर बिन अल-आस भागने वालों में से नहीं थे। उनके पास महफूजा में 2000 सवार थे जो वहां मौजूद रहे। अमर बिन अल-आस ने उन 2000 सवारों से रूमियों पर हमला कर दिया। उसकी क़यादत अमर बिन अल-आस ने खुद की। सवारों ने हमला बहुत तेज और सख्त किया और रूमियों को कुछ पीछे हटा दिया, लेकिन रूमियों ने ताजा दम दस्ते आगे लाकर उन 2000 मुसलमान सवारों का हमला नाकाम कर दिया और इतना दबाव डाला कि मुसलमान सवार मुंह मोड़ गए। वो तो जैसे बड़े ही तुंदो तेज सैलाब के भंवर में फंस गए थे। ये भी उनकी बहादुरी थी कि वो लड़ाई में से जिंदा निकल आए और खैमागाह की तरफ चले गए। औरतें जो खैमों के डंडे हाथों में लिए खड़ी थीं, भाग आने वाले मुसलमानों पर लान तान और तंज के तीर बरसा रही थीं। मोरिखों के मुताबिक बास को औरतों ने डंडे भी मारे। बीवियों की आवाजें थीं, खुदा की कसम मुसलमान खावंद इतने बेगैरत नहीं हो सकते। वो अपने खावंदों से चिल्ला चिल्ला कर कह रही थीं, क्या तुम हमारे खावंद हो जो हमें गैर मुस्लिमों से महफूज नहीं रख सकते। उस दौर के अरबी रिवाज के मुताबिक चंद एक मुसलमान औरतों ने दफ उठाकर उसकी ताल पर गीत गाना शुरू कर दिया। ये कोई बाकायदा तराना नहीं था। औरतों ने खुद गीत घड़ लिया और गाने लगी। हाय तुम्हारी खैरत कहाँ गई। अपनी उन बीवियों को जो खूबसूरत हैं, नेक भी हैं, हकीर और काबिल नफरत कुफार के पास छोड़कर भाग रहे हो, इसलिए कि कुफार उनको अपनी मिल्कियत में ले लें, उनकी इस्मतों की बेहुरमती करें और उनको जलीलो ख्वार करें। मुसलमान पसपाई में हक बजानिब थे। इतनी ज्यादा नफरी के हमले को रोकना उनके लिए ज्यादा देर तक मुमकिन न था, लेकिन अबू बैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसलिए औरतों से कहा था कि वो भाग आने वालों को डंडे और पत्थर मारें कि वो तारीख इस्लाम को पसपाई से पाक रखना चाहते थे। उनका मकसद पूरा हो गया। भाग आने वालों को औरतों ने नया हौसला दिया। उनका खून खौल उठा और वो वापस चले गए। अमर बिन अल-आस ने उन्हें जल्दी जल्दी मुनज़्ज़म किया और रूमियों पर जवाबी हमले की तैयारी करने लगे। बाएं पहलू के सालार यजीद बिन अबी सुफियान थे। उनके वालिद अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु उनके मातहत लड़ रहे थे। उस पहलू पर भी रूमियों ने हमला किया था जो मुसलमानों ने रोक कर पसपा कर दिया था। दूसरा हमला जिस रूमी दस्ते ने किया वो जंजीरों में बंधा हुआ था। 10-10 सिपाही एक एक जंजीर के साथ बंधे हुए थे। जंजीरें इतनी लंबी थीं कि सिपाही आसानी से लड़ सकते थे। क्योंकि इस दस्ते के सिपाही जंजीरों के जरिए एक दूसरे से मुंसलिक थे, इसलिए उनके हमले की रफ्तार तेज नहीं थी। मुजाहिदीन ने पहला हमला बड़ी जांफिशानी से रोका था और रूमियों को पसपा करने के लिए उन्हें चंद घंटे लड़ना पड़ा था।
उसके फौरन बाद ताजा दम दस्तों का हमला रोकना उनके लिए मुहाल हो गया। हमलावरों की नफरी 3 गुना से भी कुछ ज्यादा थी। चुनाचे मुसलमानों के जिस्मों ने उनके जज्बों का साथ न दिया और उनके पांव उखड़ गए और वो पसपा होने लगे। उनकी औरतों के खैमे उनके पीछे महफूज फासले पर थे। पसपा होने वालों में उनके सालार के वालिद अबी सुफियान भी थे। वो कोई मामूली शख्स नहीं थे, कबीले के सरदारों में से थे। कबूल इस्लाम से पहले उन्होंने मुसलमानों से कई लड़ाइयां लड़ी थीं और मुसलमानों की तबाही और बर्बादी में पेश पेश थे। कबूल इस्लाम के बाद भी वो अपने बदले हुए किरदार में अहम हैसियत के मालिक रहे, लेकिन रूमियों के सैलाब के आगे न ठहर सके और औरतों के कैंप की तरफ पसपा हुए। वहाँ भी औरतों ने पसपा होकर आने वालों का इस्तकबाल डंडों से किया। इनमें अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी हिंद भी थी। वो उनकी तरफ दौड़ी आई और डंडा आगे करके उन्हें रोक लिया। हिंद ने अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ऐ इब्ने हर्ब, तू किधर भागा रहा है? उन्होंने अबी सुफियान के घोड़े के सर पर डंडा मारा और कहा, यहीं से लौट जा और ऐसी बहादुरी से लड़ कि इस्लाम कबूल करने से पहले तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो कार्रवाइयां की थी, अल्लाह वो बख्श दे। अबू सुफियान अपनी बीवी को जानते थे। वो बड़ी जबरदस्त खातून थी। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें इतना कहने की भी जुर्रत न की कि वो भाग आने पर मजबूर थे। वो जानते थे कि हिंद के सामने बोले और कुछ देर रुके रहे तो हिंद डंडों से मार मार कर उन्हें बेहोश कर देंगी। दूसरी औरतों ने यहाँ भी वही मंजर बना दिया जो दाएं पहलू के मुजाहिदीन की औरतों ने बना दिया था। बीवियों ने अपने खावंदों को शर्मसार किया और उन्हें ऐसा जोश दिलाया कि वो सब वापस चले गए। मौरिखों ने लिखा है कि औरतें अपने मर्दों के साथ मैदान जंग तक चली गईं। उनमें एक औरत कुछ ज्यादा ही आगे चली गई। रूमी सिपाही उसके सामने आ गया। वो उसे एक औरत ही समझ रहा था, लेकिन उस औरत ने तलवार निकाली और उस रूमी को मार दिया। सालार यजीद बिन अबी सुफियान एक जगह परेशानी के आलम में अपने बिखरे हुए मुजाहिदीन को ढूंढते नजर आए। उन्होंने देखा कि पसपा होने वाले वापस आ गए हैं तो उनके चेहरे पर रौनक वापस आ गई। रूमी पीछे हट गए थे। यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दस्तों को बड़ी तेजी से मुनज़्ज़म किया और जवाबी हमले का हुक्म दे दिया। हिंद ने बहुत ही बुलंद आवाज में वही गीत गाना शुरू कर दिया जो उन्होंने ओहद की जंग में अपने कबीले को गरमाने के लिए गाया था। उस वक्त हिंद मुसलमान नहीं थी। उस गीत का लुब्बे-लुबाब ये था कि हम तुम्हारे लिए राहत और लुत्फ का जरिया बनती हैं। अगर तुमने दुश्मन को शिकस्त दी तो हम तुम्हें गले लगा लेंगी और अगर तुम पीछे हट आए तो हम तुमसे जुदा हो जाएंगी। जंगे यरमूक में भी हिंद ने वही गाना गाया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की नजर पूरे महाज पर थी। उन्हें मालूम था कि दाएं और बाएं पहलू पर क्या हो रहा है। उन्हें एहसास था कि पहलुओं को मदद की जरूरत है, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदद को इंतहाई मखदूश सूरत हाल में इस्तेमाल करने की सोच रखी थी। उन्हें खबर मिल गई थी कि दायां पहलू पसपा हो गया और बायां पहलू भी बिखर कर पीछे हट गया है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोनों पहलुओं के सालारों को पैगाम भेजा था कि वो जवाबी हमला करें। नफरी कितनी ही थोड़ी क्यों न हो, आखिर उन्हें इत्तला मिली कि दाएं पहलू के सालार ने जवाबी हमला कर दिया है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने महफूजा के सवार दस्ते के साथ मुतहर्रिक सवार दस्ते के कुछ हिस्से को इस हुक्म के साथ उधर भेज दिया कि वो दाएं पहलू पर रूमियों पर दूसरी तरफ से हमला करें। उस वक्त दाएं पहलू से अमर बिन अलास ने जवाबी हमला किया। ये थके हुए मुजाहिदीन का हमला था जो नए जोश और वलवले से किया गया था, लेकिन नफरी बहुत कम थी। फिर भी हमला कर दिया गया था। ये रूमियों की ललकार थी, अब जिंदा न जाएं, अब भाग कर न जाएं। रूमी नफरी की इफरात पर ऐसा दावा कर सकते थे कि वो मुसलमानों की इस कलील सी नफरी को जिंदा नहीं जाने देंगे, लेकिन अचानक उनके पहलू पर बड़ा तेज हमला हो गया। हमलावर घुड़सवार थे। वो नारे लगाते और गरजते आए थे। सवार दस्तों का सालार ललकार रहा था, इब्ने अलास हम आ गए हैं, हौसला कायम रखो। अमर बिन अलास के थके हारे मुजाहिदीन के हौसलों में भी और जिस्मों में भी जान पड़ गई और उसके साथ ही रूमियों के हौसलों से जान निकल गई। वो अब दो तरफा हमलों की लपेट में आ गए थे। वो बौखला गए। मुसलमान सवार ताजा दम थे। उसके अलावा वो अपने साथियों की बुरी हालत देखकर और ज्यादा जोश में आ गए थे। ये इंतकाम का कहर था। अगर दोनों तरफ नफरी बराबर होती या दुश्मन की नफरी जरा ज्यादा ही होती तो दुश्मन का बेतहाशा नुकसान होता और वो मैदान छोड़ जाता। लेकिन नफरी के मामले में रूमी सैलाबी दरिया थे। मुसलमानों के हमले का उन पर ये असर पड़ा कि वो अपनी बहुत सी लाशें और बेशुमार जख्मी छोड़कर पीछे हट गए, लेकिन भागे नहीं बल्कि मुनज़्ज़म तरीके से अपने महाज तक वापस चले गए। इधर मरकज यानी कल्ब में कैफियत ये थी कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दुश्मन की चाल समझ चुके थे। रूमी अभी तक मुसलमानों के कल्ब के सामने मौजूद थे। वो हल्का सा हमला करके पीछे हट जाते। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जान गए कि दुश्मन उन्हें मसरूफ रखना चाहते हैं ताकि वो अपने पहलुओं की तरफ तवज्जो न दे सकें। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को दाएं बाएं पहलुओं की इत्तलाएं मिली तो उन्होंने माहान का प्लान बेकार करने का तरीका सोच लिया। पहले तो उन्होंने दाएं पहलू को मदद भेजी, फिर बाईं तरफ तवज्जो दी जहां के सालार यजीद बिन अबी सुफियान थे।
खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने मुतहर्रिक सवार दस्ते के सालार ज़र्रार बिन अल अज़वर को बुलाकर कहा, इब्ने अल अज़वर, क्या तू देख रहा है कि दुश्मन हमारे बाजुओं पर गालिब आ गया है? ज़र्रार ने कहा, देख रहा हूँ इब्ने वलीद, मैं तेरे हुक्म का मुंतज़िर हूँ। क्या तू देख नहीं रहा कि मेरा घोड़ा किस बेचैनी से खुर मार रहा है? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, बाएं पहलू पर जल्द जा इब्ने अल अज़वर। सवार दस्ता अपने साथ ले और यजीद की मदद को इस तरह पहुंच कि जिन रूमियों के साथ वो उलझा हुआ है उन पर पहलू से हमला कर दो। ज़र्रार ने पूछा, किस हाल में है यजीद? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हाल जो मुझे बताया गया है वो मैं कैसे बयान करूं? अबू सुफियान जो कभी हमारे कबीला कुरैश की आंख का तारा था वो भी पसपा हो गया। दूसरी इत्तला मिली है कि पसपा होकर आने वाले फिर आगे चले गए, लेकिन तू जानता है कि हौसला एक ज़रब खा ले तो दूसरी ज़रब खाने की ताब नहीं रहती। ज़र्रार बिन अल अज़वर ने कहा, अल्लाह हम सबको हौसला दे। ज़र्रार तारीखी जंगजू थे, दिल में अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क, ज़बान पर अल्लाह और रसूल अल्लाह का नाम और उनकी तलवार अल्लाह के नाम पर चलती थी। वो तो अपनी जान से लाताल्लुक हो चुके थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का हुक्म मिलते ही उन्होंने अपने सवार दस्ते को साथ लिया और ये दस्ता अपनी ही उड़ाई हुई गर्द में गायब हो गया। इस्लामिक शोर स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।